अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। नाज़रीन, आज की तलाश के साथ मैं मौजूद हूं शाहदरा फिरोजवाला, जहां पे मंशियात फरोशों के दो ग्रुपों में तसादुम से फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी और एक शख्स हलाक हो गया। जो 4 अफराद जख्मी हुए हैं वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और एक शख्स जो हलाक हो गया है वो एक घर का वाहिद कफील था, 4 बहनों का इकलौता भाई था। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और उनके घर की क्या हालत है, जानेंगे आज की तलाश में। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है? ठीक हो? मुझे बहुत अफसोस है सन ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? मेरा बेटा 12 बजे घरों जाता है, कहता भी आज मैं ना दुकान से पानी वंडना, 10वां मुहर्रम सी। अच्छा, 10वां मुहर्रम सी, कहता अम्मी मैं दुकान से पानी वंडना, सबील लानी पानी दे। वो जाके सारा दिन पानी पोकन पिलांदा, शरबत बना के वंडदा। शाम को जो दुकान बंद करके घर वापस आन लगता। किस चीज़ की दुकान है? सलून की छोटी जी दुकान पाई हुई। अच्छा, तो वापस आंदा वा ते रस्ते दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਸ ਜੱਟ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜੱਟ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, 2-4 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾਮਾਲੂਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਝ ਆਏ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਈ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1 to 5 ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਾਸ ਜੱਟ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜੱਟ, ਅਬਾਸ ਜੱਟ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜੱਟ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, 10 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੰਡੂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੁਲਾਓ, ਚੁਕਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਖੂਨ ਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ 17-18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜੀ? ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? 23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। 4 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ 77 ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। अल्लाह ताला सबर देवे। ते थाने वालियां नूं पता नहीं गा जेरे वंशियात फरोश हैगे ने, जेरे फायरिंग करदे ने, उन्हां नूं पता नहीं गा कौन हैगे ने? पहचान ते हैगी ना उन्हां दे? हाँ जी। ते उन्हां वल कोई कार्रवाई नहीं कीती उन्हां ने?
ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਨ? ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ? 2 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। आप इस माँ की हालत देख सकते हैं कि इस टाइम क्या है। वहाँ पे उस टाइम जो मामला पेश आया होगा, उसके बाद एक लाश की, जो कि एक माँ का इकलौता बेटा है, 4 बहनों का इकलौता भाई है, एक घर का इकलौता वारिस है जो घर को कमा कर दे रहा है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है। आकर जो भी मोहल्लेदार है, इलाके वाले हैं, वो आकर उसकी तस्वीरें उतार रहे हैं। किसी के इतनी जुर्रत या हिम्मत नहीं हुई उसको उठाकर किसी चारपाई पे, कोई इंसानियत हमारे अंदर हो, कोई रहम दिली हमारे अंदर हो कि हम उसको उठाकर चारपाई पे रखते हैं। हमारे पास जवाब ये है कि वो पुलिस केस है। पुलिस केस है, पहले इंसानियत तो पहले आती है ना। एक माँ को क्या लगता होगा जब उस बेटे की बेहुरमती इस तरह से होती होगी चौक में, 2 घंटे वो पड़ा रहा है जमीन पे खून में लथपथ, क्या हालत होगी उस माँ की देखकर। तो आपसे खुदारा दरखास्त है, जो भी लोग होते हैं आप रहम किया करें हम लोगों पे। उन्होंने तो ऐसे मार के फेंका जैसे कोई बिल्ली कुत्ता नहीं मार के फेंक देती, इस तरह मैं मेरे बेटे के साथ किया। मेरे बेटे के साथ इस तरह इन्होंने किया जिस तरह किसी जानवर को मार के फेंक देते हैं तो उसको पकड़ते भी नहीं, इस तरह मेरे बेटे के साथ किया है। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਜੱਟ ਤੇ ਆਬਾਜ਼ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ੀਅਤ ਫਰੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਸ਼ੀਅਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਮਨਸ਼ੀਅਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਵਾ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਣਾ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਸੀ? ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਚਾਰੋਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲਾਂ ਨੇ, ਬੇਰਹਿਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਾਬਲ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਰਾਬਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਕੀ ਫੜਿਆ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ? ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। किसी भी इलाके के जो भी MNA MPA या जो नाजिम होते हैं या कोई भी असर रसूख रखने वाले लोग होते हैं, वो आकर अफसोस तो कर जाते हैं, पुरसा तो दे जाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो सारा मंजर होता है वो किसने देखना होता है? इनका घर कैसे चलेगा, इनकी बच्चियों की शादियां कैसी होंगी, यहाँ पे घर का निज़ाम कैसे चलेगा, रोटी रोजी कैसे चलेगी, ये किसने देखना होता है? और ये सिर्फ कहने की बात होती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। 18 दिन के बाद हमारे होते हुए यहाँ पे चंद कांस्टेबल आए हैं और कह के गए हैं हम आपके मुलजिमान को पकड़ लिया है, आके निशानदही कर ले, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं है। जो यहाँ पे चौक में खड़े होकर हवाई फायरिंग करके गए हैं, जिनकी हवाई फायरिंग से काफी लोग जख्मी हुए हैं, जिनका एक लाल चला गया है, तो क्या लगता है वो थाने में कितनी कुछ देर वहां पे रहेंगे? और ये पहला वाकया इस तर्ज का नहीं है, इस तर्ज का बेशुमार वाकयात होते रहे हैं। जो मुआशरे में असर रसूल रखने वाले लोग हैं वो हमेशा बाहर निकल आते हैं, और पिस्ता कौन है? हम जैसे लोग। ਤੇ ਮਾਜਿਦ, ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਨੇ? 5 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਤੇ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੇਫੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ठीक है, हथ वाला भी ठीक है, ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ हो गया मसला। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, वहाँ पे जो भी मंशियात फरोशों की 2 गिरोहों में आपस में लड़ाई हुई है, उन्होंने आकर सीधे ब्रेस्ट मारे हैं, फायरिंग की है, जिसकी वजह से 5 लोगों की जानों को खतरा है। एक जो है इनका बेटा जो हलाक हो चुका है, 2 जो है वो अभी भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल है, और 2 जो है वो बच गए हैं। लेकिन इनका वाली वारिस कौन है? इनको पूछने वाला कौन है? पुलिस वहाँ पे आई है, आकर चली गई है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता इनको इंसाफ मिलेगा। जो भी असर रसूल रखने वाले लोग हैं, जो कि तहजीब है, शहबाज जट और अब्बास जट का जो भी बेटा है तहजीब, आपको लगता है कि उसको कितनी को देर थाने में रख सकेंगे ये लोग? माजी, तन लगता है कोई उम्मीद है ये तन इंसाफ मिलेगा? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੁੜ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਰਦ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ DPO ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, DPO ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, DPO ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਦੂਸਰੇ DIG ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। DPO ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ DPO ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ DPO ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ DIG ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਬਸ ਇੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ DIG ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ DIG ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, DPO ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। DPO ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ही टीचा। मेरी यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा, IG पंजाब और जो भी पुलिस हुकाम है, उनसे मेरी अपील है कि काइंडली आप इन वाक़ियात का नोटिस लें। जो भी मंशियात के गिरोह हैं हर इलाके में मौजूद हैं और उनका असर रसूख अकेले नहीं होता, वो किसी के कंधे पे रख कर बंदूक चला रहे होते हैं। पुलिस साथ मुलविस होती है, उनको पता होता है किस इलाके में कौन सा गिरोह क्या काम कर रहा है। तो ये पुलिस वालों पे एक सवालिया निशान है कि आपकी लावर्जी की वजह से किनकी जानें जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे अपील करना चाहूंगी IG पंजाब साहब से कि काइंडली आप इन वाक़ियात का नोटिस लें। थाने हम बड़े ज़बरदस्त रेगुलेट कर रहे हैं और उन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के रवैये हैं, उनकी कारकर्दगी है, वो कौन देखेगा? वो अभी तक कोई नहीं देख रहा। वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सिर्फ रेनोवेशन करने से कुछ नहीं मिल रहा। इन लोगों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? 20 दिन हो गए बेटे की डेथ को, लेकिन अभी तक ये सिर्फ थाने के चक्कर काट रहे हैं, DPO के चक्कर काट रहे हैं। IG पंजाब साहब के IG पंजाब को गए हो कि DIG को गए हो? DIG। ये सिर्फ चक्कर काट रहे हैं, मुलाकात कोई भी नहीं करने दे रहा। अगर मुलाकात हो भी जाए तो कौन इंसाफ दिलवाएगा? जो वहाँ पे मरकजी मुल्जिम है वो यहाँ इधर असर रसूख रखते हैं। अगर यहाँ पे पुलिस का इतना कंट्रोल होता तो वो फायरिंग करने से पहले सोचते। अंधाधुंध फायरिंग सामने से आकर वार कर रहे हैं। तुसी कोई अपील करना चाहोगे उन मरियम नवाज साहिबा ने? मरियम नवाज ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ 2 ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ 3 ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ? 10,000 रुपया किराया है। ते मालक मकान ने इस महीने किराया माफ किया? हजे महीना पूरा नहीं होया, हजे ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿਰਾਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਨ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ।
ते बिल भी जमा कराने सा, खाना भी गप्पे सारा तो कुछ। बच्चा जवान होया तो आने लग गया कि काम नहीं करना पेगा, हम जिंदगी जरा सुकून दी गुजरेगी। हाँ बच्चा जवान होया ते मेरा मियाँ फोत हो गया, 2 साल मेरे मियाँ फोत होए ने ते पिछे मेरा बेटा हो गया। जालिम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जिसको आप फायर कर रहे हैं वो कितने घरों का चिराग जो है ना वो बोझल कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि इतने जालिम हम दरिंदा सिफ्त हो चुके हैं, हमें नहीं पता होता कि किस माँ का वो बेटा है, किस घर का वो वारिस है जो घर चला रहा है, उनका घर कैसे चलेगा, उस माँ की हालत कैसी होगी जो सारी उम्र मेहनत मजदूरी करती रही है सिर्फ इस बिना पर कि उसका बेटा अब जवान हो गया कमा कर लेकर आएगा। लेकिन उनको तरस नहीं आता, उनको रहम नहीं आता। हम इतने मफाद परस्त हो गए हुए हैं और वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है हमारी हिफाजत करना वो भी खामोश होकर बैठे हैं। 18 दिन के बाद अगर आप इनको कह रहे हैं कि हमने आपके मुल्जिमान को पकड़ लिया है, किस बिना पर कह रहे हैं? सिर्फ 4 दिन के लिए इनको सपोर्ट देने के लिए, इनको लगे कि इनके साथ कोई इंसाफ होने वाला है। लेकिन ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो असर रसूल रखने वाले हैं वो बाहर आ जाएंगे। हमारे साथ मकतूल की बहनें मौजूद हैं जिनका जवान भाई इस दुनिया से चला गया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है हमें आपके भाई का। आप मुझे बताएंगी आप उस दिन घर में थी, कहाँ पे थी? हम घर पे ही थे। आप इधर आई हुई थी? जी हम अच्छा। इधर ही आए थे, 10वां मुहर्रम था तो पैसे दे के गया घर के ख़त्म दिला लेना। अच्छा। तो मामा से पैसे दिए मामा को कि ख़त्म दिला लेना, मामा ने हमें कहा तुम लोग आ जाओ ख़त्म दिला ला। तो हम आए हैं तो हमें कोई लड़का आके बता रहा है कि तुम्हारे भाई को गोलियां लग गई हैं। आप वैसे ही खत्म के लिए आई हुई थी? जी हमें कह रहे हैं तुम्हारे भाई को गोलियां लग गई हैं। मैंने कहा वैसे ही जख्मी हो गया होगा, फिर भी देखते हैं। हम गए भाग के जाके देखा है उसे तो लड़के आगे नहीं जाने दे रहे हमें। मैं बाजू छुड़वा के अपना आगे गई हूँ तो जब देखा है तो वो तो ख़त्म हो गया था। इतना खून उसके दिमाग में से निकला हुआ था ना, तो देखा नहीं जा रहा था, देखा नहीं जा रहा था। और कौन बहन है कि जो अपने भाई का खून देख सकती हैं? इतनी सी चोट लग जाए तो देखा नहीं जाता। तो वो तो भाई के दिमाग में से इतना खून निकला हुआ था। इकलौता भाई वो था? तो मेरा एक भाई था और मेरे साथ इतना प्यार था उसका। बहुत छोटा था आपसे? मुझसे 2 साल छोटा था आपसे? मुझसे 2 साल छोटा था। बहुत प्यार करता था मेरे साथ और मैं भी उससे बड़ा। हमने तो मन्नतों से लिया था, हमने तो उसकी मन्नत मांगी थी। जब वो हुआ मेरे अब्बू ने माम से इनका फकीर बनाया, उसे मन्नतों से लिया था। वो हमारा एक भाई था। वो अभी भी इस तरह लगता है जिस तरह इधर ही है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आवाज़ दे देगा, इधर से आवाज़ दे देगा। अब तो हमें कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहा इस घर में कि कोई हमें पानी पिलाएगा हम जब आएंगी तो। आप शादीशुदा हैं? जी। तो घर के हालात आपके सामने थे, जैसे आपकी वालिदा भी काम करती थी, वालिद भी काम करते थे, तो भाई के बाद एक निज़ाम दुरुस्त हो रहा था। हाँ जी, वो रोज़ खर्चा देता था अम्मी को। अम्मी भी काम करती थी, अम्मी किराया दे देती थी, वो बिल दे देता था, घर का खर्चा करता था, दूध ला देता था, सब्जी ला देता था, तो खर्चा करता था। बहनों ने आना है उनको पूछता था हमें, भाई होने का मुकम्मल फर्ज अदा कर रहा हमें था। पूछता था क्या खाना है। मेरी तबीयत ख़राब हो जानी, जल्दी जल्दी बोतल मंगवा लेनी कि ये लो तुम बोतल पियो, तुम्हारा बीपी लो है। 9वें मुहर्रम में उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के आई हूँ, मुझे लेके आया है। मैंने उसको जब भी डाल ली है, मुझे नहीं पता था कि मैं उसके साथ पहली आखिरी दफ़ा बैठ रही हूँ। मुझे नहीं पता था। मेरे भाइयों से तो वैसे भी बेटों की तरह प्यार होता है। हाँ, जिम जाता था तो इतना माशाल्लाह प्यारा जिस्म किया हुआ था अपना। तो मैं कह रही हूँ कितना प्यारा जिस्म हुआ हुआ, तुम्हारा बॉडी बनाई हुई थी उसने अपनी। माशाल्लाह अपना भी बड़ा ख्याल रखता था, खुराक खाता था। दुनिया से इस तरह चला जाएगा हमें बिल्कुल नहीं पता था, इतनी जल्दी चला जाएगा नहीं पता था। अकेला भाई था हमारा, और हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। हमारे तो अब्बू भी फोत हो गए, अभी अब्बू का गम नहीं खत्म हुआ था, अभी 2 साल हुए थे। इस तरह लगता था जिस तरह 2 दिन हुए हैं। तो अब्बू का गम नहीं खत्म हुआ तो ऊपर से ये भी चला गया। पहले कभी आप ये मंशियात फरोशों के बारे में सुना है आपने इलाके में? जी मंडाले में करते हैं ये मंशियात फरोख्त। तो ये मेरी जो बहन सिस्टर है ना, इसके घर के पास ही उनके जो मंशियात फरोख्त है।
तो उन्होंने तो लाइनें बनाई होती हैं, लाइनें किस चीज के? नशेइयों ने लाइनें बनाई होती हैं, तो उनको स्टिक्के मारते हैं कि लाइनें सीधी करो अपनी। उनको एक एक पुड़िया देते हैं, लाइनों में लगकर नशे वहां से नशा खरीद रहे होते हैं। जी लाइनें लगी होती हैं और स्टिक्के मारते हैं उन्हें कहते हैं कि लाइन सीधी करो, और एक एक पुड़ी देते हैं और उन्हें कहते हैं भाग। बकिया हिस्से की तरफ भाग जो, दफा हो जो, भाग जो, इतना नशे। खुलेआम नशा फरोख्त कर रहे हैं वो। तो पुलिस किधर होती है उस टाइम? पता नहीं, पुलिस उन्हें मंथली जाती है, पैसा जाता है, उनके पास करोड़ों रुपया मैडम, इतना पैसा। उन्होंने कहा हम अपने बच्चे छुड़वा सकते हैं, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप तक आई है ये बात? जी जी, किन्होंने आप तक बात पहुंचाई? हमें लोगों ने कहा है कि वो कहते हैं हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, हम तुम्हें इतने पैसे देते हैं, कोई मकान लेके देते हैं, तो अगर कचहरियों में जाना है तो शौक से जाओ। अच्छा। हम तो पैसा लगा सकते हैं, तो तुम लोग हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, हमसे पैसा ले लो, मकान ले लो, घर ले लो। किसके लिए मेरी माँ मकान ले? जब मकान में रहने वाला ही नहीं है तो किसके लिए मेरी माँ मकान ले, किसके लिए पैसा ले? अकेली है, कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है उसका। ऐसे लोगों की पावर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुलेआम नशा फरोख्त कर रहे हैं, लाइनों में लगकर नशई उनसे पुड़िया ले रहे हैं, पुलिस वालों को मंथली जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता इलाके में कोई काम हो रहा हो और पुलिस वालों को उसकी खबर ना हो। सब कुछ हो रहा है, आकर वो फायरिंग कर कर जा रहे हैं, कितने लोग मार कर जा रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा? नहीं, पहले भी इन्होंने फायरिंग की है, कभी अवामिया कॉलोनी में, पहले अवामिया कॉलोनी में की है, ये थोड़े दिन पहले भी इन्होंने वंडाला पुल पे की है फायरिंग, दूध वाली दुकान पे फायरिंग की है। उन्होंने कहा है कि यार अपने बच्चों को समझाओ क्यों ये फायरिंग करते हैं। तो वो आइस पीते हैं, उनके लड़के आइस पीते हैं। वो आइस जो पीता है वो तो इंसान पागल होता है ना। तो आप मुझे ये बताएं, पुलिस वाले आपके पास अगर 17-18 दिन के बाद आ जाए ना आपके पास, तो कह रहे हैं हमने 4 मुल्जिमान को पकड़ लिया जी, तो आपको लगता है आपको झांसा दे रहे हैं? जब वो इतनी पावर शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने आपके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये आपको कोई सीन लग रहा है? 18 दिन बाद आए हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ आओ हम देखते हैं ना कि क्या है, वाकई वही मुल्जिमान है। क्योंकि हमने ये भी खबर सुनी है कि वो कह रहे थे हम अपने 2 लड़के दूसरे पेश कर देंगे, अपने उन 9th क्लास में पढ़ते हैं लड़के जिन्होंने फायरिंग की है, वो नवी जमात के तालिब इल्म है। जी, हल्की उम्र के लड़के हैं, वो कभी भी अपने बच्चे नहीं देंगे पुलिस वालों को, वो खुद पेश हुए। तो वो ये तरबियत करके जवान कर रहे हैं कि जाके किसी को भी मार कर आ जाओ। जी, उनका कारोबार चलाने की खातिर सर। जी, तो पुलिस दहशत खिलाते हैं, यहाँ दहशत डालते हैं कि हम उनके बेटे हैं शहबाज जट। मरकजी मुल्जिम कौन है इनमें से? इनमें जो अब्बास जट का बेटा है और शहबाज जट, ये दोनों भाई हैं ना। क्या नाम है उनका? अब्बास जट और शहबाज जट दोनों भाई हैं, इनके बेटे हैं, दोनों कजन हैं। और इनके साथ लड़के थे और भी, कोई हमजा नाम है, कोई हमजा डोगर है, कोई किसी का नाम अली है। तो जिस टाइम ये फायरिंग हो रही थी उस टाइम ये दोनों के बेटे मौजूद थे? जी, दोनों ही थे। इन्होंने आवाज भी लगाई है कि हम शहबाज जट के बेटा और भतीजा है। इन्होंने आवाज भी लगाई है, वहां से हमें लड़कों ने बताया जो करना है कर लेना, जो भी कर सकते हो कर लेना। उन्होंने दहशत खिला रही है, पर दहशत तो खिला रही है, पर मेरे भाई को तो ले लिया इन्होंने, वो तो दुनिया से चला गया। हमें तो कोई आसरा नहीं है किसी का। मैं ये बातें सुनकर हैरान नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे हमारे जो पुलिस का निजाम है मुझे उसका अंदाजा तो जरूर है, लेकिन इतने खुलेआम ये लोग यहाँ पर आकर मंशियात फरोशी कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं और अपने वालिद का नाम लेकर बदमाशी कर रहे हैं कि हमारा वालिद फुला है, जाओ जो करना है कर लो, और पुलिस वाले सिर्फ मुंह देख रहे हैं। और आकर 18 दिन के बाद इनको घर आकर झांसा दे रहे हैं कि हमने आपके मुल्जिमान जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए, आकर आप पहचान कर लें। तो ये मुझे समझ नहीं आती है हो क्या रहा है। तो आईजी पंजाब साहब से दोबारा से मैं दरख्वास्त
दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आपकी मेहरबानी, जो भी आपके पुलिस हकाम है, आप उनको देखें, नोटिस लें, वो क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, जो आप उनको दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, उस पर पूरा उतर रहे हैं भी कि नहीं। जो हम कोई भी अगर उनके पास वाकया जा रहा है वो तो बात की बात है ना, लेकिन जो उनके सामने हो रहा है उसको तो टारगेट करें वो लोग। खुलेआम लाइनों में लगकर अगर कोई मंशियात फरोशी कर रहा है और पुलिस देख रही है, मंथली जा रही है, तो मुझे लगता है ये शर्म का मुकाम है। तो आप कोई अब अपील करना चाहेंगी? मेरी बस यही अपील है कि ना मेरे भाई को इंसाफ दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो गुनहगार था, बेकसूर था, उसको बस इंसाफ दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना किसी का घर चाहिए। हमारा भाई नहीं रहा, हमने किसी से क्या लेना है, किसके लिए लेना है? तो आपने उन लोगों को जवाब क्या दिया है? हमने वो बंदों से यही कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी माँ कहती है मैंने अपने बेटे का खून का सौदा करना है, अपने बच्चे के खून के पैसे लेने हैं मैंने। मुझे नहीं चाहिए, ना कोई घर चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए। किसके लिए घर चाहिए? कोई है ही नहीं घर में रहने वाला। तो अब आपकी वालिदा जो हैं, जैसे कि वो खुद ही घर चला रही हैं, जिस तरह से अभी आप गुजारा चलेगा तो कैसे चलेगा? आपको कुछ समझ आती है? बस मेरे मामूओं ने थोड़े बहुत मेरी अम्मी को पैसे दिए थे, उसी से ही थोड़ा थोड़ा गुजारा कर रही है। तो रोज़ रोज़ तो कोई किसी को देता नहीं है। अब मेरी अम्मी काम पे जाना शुरू कर दिया, मेरी अम्मी काम पे जा रही हैं, क्योंकि घर में रह रह के वो दिमाग उनका बिल्कुल रो रो के बुरा हाल हो गया था उनका। जिस माँ का जवान बेटा चला जाए तो वो क्या कर सकती हैं? तो वो अब काम पे जा रही हैं मेरी अम्मी। जहाँ काम करती हैं वो भी थोड़ा बहुत एहसास करते हैं। उनकी अपनी दूध की दुकान है, दूध वगैरह दे देते हैं हमें, मेरी माँ को खर्चा दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, खाना खा के जाना तुम। बस एहसास करते हैं थोड़ा बहुत, और तो चलें, आपको अल्लाह पाक सब्र दे। हम साथ अपील भी कर रहे हैं कि आपको इंसाफ दिलवा सकें। जी, मेरी भी अपील है मरियम नवाज से कि वो हमारा साथ दे, मेरी माँ का साथ दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा साथ दे। वालेकुम, क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया। हादिया, भाई छोटे थे आपसे? बड़े थे। बड़े थे आपसे? आप सबसे छोटी थी? मेरे से छोटी भी है। एक और बहन है आपसे छोटी। तो भाई प्यार करते थे आपसे? बहुत ज़्यादा करते थे। एक ही भाई थे ना? सारी बहनों से उस तरह से ही प्यार करते थे? जी। क्या आपसे ज़्यादा करते थे? सबसे बहुत करते थे। आप भी उस टाइम घर थी? जी। क्या क्या कर गए थे? कुछ भी नहीं, रात 4 बजे तक हमारे पास बैठा रहा, 9वें मुहर्रम की रात। तो मुझे कह रहा है आदि मुझे 12 बजे उठा देना, मैंने जाके सबीर लगानी है। मैंने उसे 12 बजे उठाया तो वो चला गया। मामा को जाते जाते कह रहा आपके पास खर्चा है? मामा कह रही नहीं, तो जितने भी पैसे हैं ना जेब में मामा को दे दिए हैं। तो चला गया, उसके बाद नहीं आया। पढ़ती हैं आप? नहीं पढ़ती हैं। तो पापा के बाद जब वालिद साहब आपके गुजर गए तो भाई ने काफ़ी ख्याल रखा? जी। तो वालिद साहब की कभी कमी महसूस होने दी उसने? नहीं। हर ज़रूरत का ख्याल रखता था आपकी? तो आपको किसका फ़ोन आया था उस दिन, कैसे पता चला? मामा आई थी, बाकी बाकी हम घर थे ना। मामा रास्ते में जा रही थी सौदा लेने। अच्छा। रास्ते में किसी ने बताया मामा को, मामा पहले घर आई हैं। अच्छा, मामा को रास्ते में किसी ने बताया? जी, मामा पहले घर आई हैं हमें बुलाने के, तुम्हारे भाई को गोलियां मार दी हैं किसी ने। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। मैंने कहा नहीं झूठ है, मैंने कहा झूठ है, लोग ऐसे बोल भी देते हैं। फिर मेरी छोटी बहन ने जूता भी नहीं पहना, मामा के साथ चली गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं साथ जाके देख ही लूँ कि बाकी मेरे भाई को मार दी। मैं घर से नहीं निकली। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैं घर पे ही थी, मामा और मेरी छोटी बहन चली गई उसके पास। मुझे नहीं पता। मेरे फिर चाचू आए हैं घर, उन्होंने आके मुझे बताया कि अजीम इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अकेली घर में हूँ, इतना रो रही हूँ, मोहल्लेदार आ रहे हैं मुझे चुप करवा रहे हैं। ये भी उधर थी भाई के पास जहाँ पे वो फोत हुआ था। मैं अकेली थी। आपकी जाने की हिम्मत नहीं हुई? नहीं हुई मेरी जाने की हिम्मत। मैंने कहा ये झूठ, अल्लाह ताला झूठ ही हो जाए, ये कि मेरा खा भी हो जाए कोई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
तो आप वहाँ पे गई नहीं थी चाहे वो कुआं पे, आप घर में ही रहकर वेट कर रही थी। फिर उसके बाद आपको क्या पता चला? अम्मी ने आकर बताया या भाई को डायरेक्ट घर लेकर आए? नहीं, मामा तो उधर ही थी ना, तो चाचू मेरे आए फिर घर हमारे मुझे बताने के लिए। फिर मुझे कह रहे तुम बाहर ना निकलना, तुम ना आना बाहर, तुम बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। तो बच्चे थे मेरे पास, तो मैं थी, तो उधर से भाई को तो नहीं लेके आए। फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए, सुबह 5 बजे लेके आए पोस्टमार्टम करके। फिर मैंने भाई को देखा। तो इलाके में ये लोग, आप लोगों को भी, आपने भी नाम सुना हुआ है उन लोगों का, इतने मशहूर लोग हैं वो। पहले तो चलो भाई के सर पे निजाम चल रहा था, वालिद साहब के बाद माँ की जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। दूसरों के घरों में इस उम्र में आकर काम करना, और बच्चियां भी जवान हैं, आप घर में अकेली रहेंगी, तो आप कैसे मैनेज करेंगी सब? अब जाहिर है मैं भी थोड़ा बहुत करूँगी, मामा अकेले तो नहीं ना कुछ कर पढ़ी नहीं हुई आप बिल्कुल भी? जी मैं मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है आपने? तो अम्मी का आप हाथ बटाएंगी? जी कुछ करूँगी। CV जमा करवा दिया मैंने, इधर पास ही है तो उधर CV जमा करवा दिया। अब इंटरव्यू का फ़ोन आएगा ना, तो फिर जाऊँगी इंटरव्यू देने। तो आपको लगता है जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो कह रहे हैं आपके जो भाई का कत्ल हुआ है उसको माफ कर दें, हम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, जो दूसरे लवाहिकीन हैं जिनके घर के इस तरह से लोग जख्मी हैं, तो उनको भी अप्रोच किया उन्होंने? इनका नहीं पता हमें। आपको पता है कि उन लोगों को भी अप्रोच किया उन्होंने? नहीं, उन्हें भी अभी उन्हें कुछ नहीं कहा है, क्योंकि आपका भी फोत हो गया तो इस वजह से आपको फर्स्टली अप्रोच किया जी, उन्होंने? हमारा फोत हो गया ना, इसीलिए हमें उन्होंने कहा है, और उन्हें पता है कि हमारा अकेला बेटा है। तो जो 4 मुल्जिमान अभी पुलिस कह रही है उन्होंने गिरफ्तार किए, उनमें से किसी के नाम पता है आपको? नहीं, अभी तो नहीं हमें पता। एक तो है ना, वो मेरा क्लास फेलो रहा है, मेरे साथ पढ़ता रहा। अच्छा, वो हमजा डोगर है ना, जो मेरा क्लास फेलो रहा है, मेरे साथ पढ़ता रहा, उसे पता भी था मेरा एक भाई। तो ये 9th क्लास के इनका, आप तो चलो उनके साथ पढ़ी हो, तो क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, तरबियत क्या रही है कि 9वीं क्लास के बच्चों के हाथों में पिस्टल दी है? ये स्कूल में भी इनका यही था मसला, सर से भी बदतमीजी करता रहा, इतनी स्कूल से इसे निकाल दिया था। फिर हमजा डोगर तो स्कूल से निकाल दिया था सर ने, बहुत बदतमीज था तब। तो आपको पुलिस वालों ने जब आपके पास आए हैं कि 18 दिन के बाद हमने आपके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, तो आप लोगों को कुछ है कि आप जो मेन मरकजी मुल्जिम है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे हमें इंसाफ मिलेगा? वो लोग कौन है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। वो लोग तो हमें अभी नहीं पता कि कौन से लोगों को इलाके वालों ने जो दूसरे, उन्होंने कोई बताया नहीं आपको? नहीं, कौन से लोग गिरफ्तार किए हैं ये हमें नहीं पता अभी। तो अब हम जाएंगे तो देखेंगे कौन से लड़के हैं, क्योंकि हमने उन लड़कों की देखा भी है, उनकी तस्वीरें भी हैं हमारे पास। जिन्होंने फायरिंग की है उनकी तस्वीरें आपके पास कैसे आई हैं? जी, हमें ना किसी ने नेट में फेसबुक से निकाली थी, मुझे पता। जी, इसको पता है, इसके क्लास वालों थे, इसे पता है वो कौन लोग हैं, तो इसने फेसबुक में से निकाली थी उनकी तस्वीरें। हम जाके देख लेंगे, अगर तो हमें किसी ने कहा उनके बाप पेश हुआ है और कोई लड़के पेश किए हैं, इन्होंने खुद उनके अपने बच्चे पेश नहीं हुए, तो वो अब हम आप जाएंगे तो देखेंगे कि कौन से लड़के इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। क्या वो ही मुल्जिम है कि इन्होंने वैसे ही लड़के पेश करवा दिए हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए, पैसे दे के, पैसा लगा के? तो जब आप जाए वो कुआं पे उस टाइम गई थी, तो पुलिस या फिर एम्बुलेंस है वो फौरी आई थी? कितना टाइम लगा था उसको? 2-2.5 घंटे बाद आए हैं, 2-2.5 घंटे बाद। 2 घंटे वो मेरा भाई जमीन पे पड़ा रहा है, नीचे पत्थरों के ऊपर पड़ा रहा है, किसी ने उठाया नहीं है। मेरा हस्बैंड आया है तो उसने, मेरी दूसरी बहन का मियाँ आया, उसने चारपाई लेके आए हैं, उन्होंने टांगों से उठाया, दोनों लड़कों ने पकड़ा है तो उन्होंने चारपाई पे लटाया। तो जब फायरिंग हुई तो जो वहाँ पे इलाके वाले मौजूद होंगे, दुकानदार साथ वाले, तो उन्होंने चेक किया तो उसकी नब्ज चल रही थी उस टाइम? वो कह रहे थे नहीं, ये मौके पे ही फोत हो गया था, बस थोड़ा सा ही ये फड़का है, मुंह में हमने पानी डाला है, आधा पानी इसके अंदर गया हलक से, आधा बाहर था, तो उधर ही फोत हो गया था। और इतना खून था कि हमें पता नहीं चल रहा था गर्दन से निकल रहा है कि सर से निकल रहा है। तो जब खून रुक गया ना, फिर पता चला कि यहाँ गोली लगी है उसके।
पुलिस जब मौके पे आई तो उनका रवैया कैसा था आपके साथ? उनका रवैया, उन्होंने बस हमें कहा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। हमने कहा हम क्यों पीछे हट जाए, हाथ नहीं लगाओ। मैंने कहा हमारा भाई है, हम हाथ क्यों नहीं लगाएं, तुम लोग उसे उठाओ, उठा के चारपाई पे लटाओ। फिर भी उन्होंने नहीं उठाया। मेरे तो 2 घंटे तक उठाया क्यों नहीं उनको? शवाहिद इकट्ठा वो करने थे क्या? लेट आई है पुलिस, इतनी देर बाद आई है पुलिस। मगरिब के बाद ये वाकया हुआ है और ईशा के बाद आई है पुलिस। मगरिब के बाद वाकया हुआ है और इशा के बाद पुलिस आई है? जी जी, इतनी लेट पुलिस आई है। इतना इलाका इकट्ठा था वहाँ, इतने लोग इकट्ठे थे, पुलिस एंड पे आई है पुलिस, पहले पुलिस नहीं आई। ये यहाँ पे हाल है। मंशियात फरोश जो है या 2 गिरोह जो है आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनके तसादुम की वजह से वो फायरिंग कर रहे हैं, आकर सामने से वार कर रहे हैं। एक बेटा हलाक हो गया है, 2 अस्पताल में मौत की कश्मकश में है, 2 जो बच चुके हैं उनका भी कोई एतबार नहीं है। पुलिस जाए वो कुआं पर जहाँ पे हादसा हो गया, जहाँ पे पूरा इलाका फिरोज वाला तकरीबन मेन चौक है, वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं सब, लेकिन पुलिस को इत्तला नहीं मिल रही है। मगरिब के बाद ये वाकया पेश आया, लेकिन पुलिस आ रही है इशा के बाद। इशा के बाद तो आ रही है, उसके बाद जो वाकया पेश हुआ 18 दिन के बाद इनके पास आ रहे हैं दरखास्त लेने के बाद कि हाँ हम कोई स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि जो मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किए हैं क्या वही मुलजिम है, क्योंकि अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी पुलिस कर क्या रही है। जहां पे पहुंचना है वहां पहुंच नहीं रहे हैं। थाने रेनोवेट जो है वो दिन ब दिन होते जा रहे हैं, रवैये आज भी वैसे ही हैं। तो मैडम आजकल तो जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, क्या वो देख नहीं सकते? जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। तो क्या पुलिस ने कोई शवाहद इकट्ठे किया, निकाले? नहीं, पता नहीं, हमें अभी तक कुछ नहीं उन्होंने बताया। वो क्या कैमरों में से देख नहीं सकते वो लड़के कौन है कौन नहीं? 2-3 कैमरे चौक में ये वाकया हुआ है, वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे से निकाल सकते हैं वो उसकी वीडियो, पर अभी तक किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये तो पुलिस वाले जिन्होंने कैमरे लगाए उन्हें जाके कहेंगे तो वो देंगे ना पुलिस वालों को, हम लोगों को तो नहीं कहेंगे कि आके देख लो जल्दी तो आपको लगता है पुलिस जानबूझ के टाल मटोल कर रही है? हमें यही लगता है कि जानबूझ के कर रही है, क्योंकि अगर इन्होंने करना होता तो हमारे पास पहले ना आते। आज कितने दिनों बाद आए हैं, वो भी शायद मेरी माँ वहाँ दफ्तर गई हैं शेखपुरा डीपीओ के, तो वहाँ से शायद फोन आया होगा कि थोड़ी बहुत करो केस को आगे लेकर चलो, कुछ थोड़ी टाइम बहुत के लिए कार्रवाई करो, क्योंकि वो कह रहे थे हम फोन करेंगे उन्हें। तो आपकी माँ जी ने भी हमें बताया कि जिस तरह से दूसरे लोग हैं वो भी अस्पताल में हैं, जिंदगी की कश्मकश में ही है एक तरह से, तो उनका क्या कहना है? वो पैरवाई करेंगे इस केस की? वो कहते हैं कि हम पैरवाई करेंगे, हमारे बच्चों का इतना बुरा हाल है। एक की तो अभी 5 माह हुए थे, शादी हुई थी, छोटा सा ही है, वो भी हल्की सी उम्र का लड़का है, उसका नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता, वो मजदूर हो गया वो लड़का। एक लड़का जवान मजदूर हो गया उनका बच्चा, और अभी तक भी डॉक्टर कहते हैं इसका कोई पता नहीं है। और जो दूसरा है उसके वो जिनसे सांस आना है वो फेफड़े ही नहीं काम कर रहे, उसके जिगर में गोली लगी है, तो वो आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे लगा था, तो अब उसकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक हुई थी तो फिर उसको सांस का मसला हो गया। तो आपके घर में तो ऐसा आप देख सकती हैं, ना भाई है ना वालिद साहब है, तो अब थाने के चक्कर वगैरह लगाना, तो ये पैरवाई कौन करेगा? केस को कौन आगे लेकर चलेगा? कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आप लोग सुलह कर लें, जो वो कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, चले बेशक आप ना लें कुछ भी उनसे, वैसे आप उनको अपने भाई के लिए अल्लाह की खातिर उनको माफ कर दें, ऐसा कुछ करेंगे? क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है हम लोगों में, इतनी सकत नहीं है कि थानों के चक्कर लगाएं, कचहरियों के चक्कर लगाएं। घर के किराए देने के पैसे हैं आपके पास नहीं, तो फिर बाहर जाके किराया लगाना, इस तरह से आना, तो सुलह की तरफ मामला लेकर आएंगी? पता नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो हमें अपना भाई नहीं भूला, अभी तो उसके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है वो नहीं भूली है, अभी तो हमें कुछ नहीं पता। सुलह का तो बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं सकते अभी। तो अल्लाह की खातिर माफ करेंगे उनको? वैसे अल्लाह की खातिर मेरी माँ है, वो माफ करे या ना करे पता नहीं। आखिरी बार कोई अपील करना चाहेंगी मरीम साहिबा से? यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरी माँ का इंसाफ दिलवाएं, हमें इंसाफ दिलवाएं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, उन लड़कों को सजा दो। आज हमारा भाई जख्मी हुआ, कल को वो किसी और का भाई जख्मी करेंगे, कल को किसी और का लड़का ले लेंगे, किसी माँ का बेटा और जख्मी कर देंगे, मार देंगे। इनको पकड़ा जाए, इनको सजा दी जाए, इन्हें पता हो कि हमें किस चीज़ की सजा मिल रही है। हमने किसी का बच्चा मारा, किसी के बच्चे जख्मी किए हैं,
और वो भी 10वें मुहर्रम। ये मुसलमान है, 10वें मुहर्रम तो कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता, हर बंदा हर किसी को पानी पिलाता है सवाब के लिए। तो इन्होंने 10वें मुहर्रम ये काम किया, इनको ज़रा खौफ नहीं आया। मेरा भाई तो शहीद हो गया, वो तो शहीदों में चला गया, वो तो इमाम हुसैन का फ़कीर था, उनके शहीद वाले दिन चला गया, वो तो शहीद हो गया। पर ये तो यजीज थे ना, जिन्होंने 10वें मुहर्रम ये काम किया, दिन नहीं देखा कि कौन सा दिन था वो। जी, हमारी भी अपील यही है कि आप जो भी मुल्जिमान है उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक घर का इकलौता वारिस, वाहिद कफील, एक माँ का इकलौता बेटा, 4 बहनों का इकलौता भाई, 2 गिरोहों की तसादुम फायरिंग की नजर हो गया है। पीछे पुलिस क्या बैकअप कर रही है वो भी चीजें आपके सामने हैं। 2 घंटे के बाद जाए वो कुआं पर आना, 17 दिन के बाद किसी केस का बैकअप लेना, तो ये हमारे पुलिस की कारकर्दगी पे एक इंतहाई सवालिया निशान है। यहाँ पे मैं IG पंजाब साहब और जितने भी पुलिस हुकाम है उनसे अपील करना चाहूंगी कि काइंडली इनके रवैयों का और कारकर्दगी का नोटिस लें। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह ने के बाद।